Hello friends, today I am going to discuss the very basic concept of inverse trigonometric functions. Its definition, its definition in terms of relation of functions, its graph, and its comparison with simple trigonometric functions. Let us start with simple trigonometric functions. These functions can be defined as sine is a relation from set of real numbers to a set of real numbers defined by closed interval -1 to +1. In the same way, cos can be defined as a set of all real numbers to set of real numbers defined by closed interval -1 to +1. In the same way, tan, cot, sec and cosec can be defined. Now, as these functions are periodic functions, then these functions can be said to be non-one functions. Its inverse may only exist when these functions are one function and onto functions. About onto, as all the elements of its range are mapped to some elements of its domain, therefore it is onto. But as it is periodic functions, therefore it is not one functions. Its inverse will only exist when we will make it one function by imposing certain restrictions. These certain restrictions are going to define the principal value of these functions. ओके, एक बात और पहले हम समझ लें इसके साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं. इन फंक्शंस को हम आर्क ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं. आर्क, ARC. नाउ अगर हम कहें व्हाट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वी विल से दैट sin 30 is equal to, we know 1/2. Therefore, sin inverse 1/2 can be said to be as 30 degree. This is called inverse trigonometric functions. Means the opposite process of what simple trigonometric function does is called inverse trigonometric functions. इससे पहले हमने देखा था कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये फंक्शन is defined to be bijective function, that is one function and onto function. Now the parameter of imposing certain restrictions can be understood by simply plotting its graphs. हम एग्जाम्पल ले सकते हैं साइन का, कॉस का, और सभी की हम स्टडी करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें y = sin x. इसके ग्राफ को हम बात करें तो हम ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज 0, पाई, 2 पाई, 3 π/2, π/2, this value -1, this value +1, this is x, this is y, and graph is of y = sin x. In the same way, if we are going to draw
x is equal to sin inverse x graph, sin inverse y graph, then यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल x हो जाएगा, +1 -1 0 π/2 π 3 π/2 and 2 π, -π/2 -π -3 π/2 -2 π. Now, as this graph shows that this function, that is y, x is equal to sin inverse y, is not a function. It will be only a function when we consider the graph from -π/2 to +π/2. -π/2 to +π/2. -π/2 to +π/2, यहां पे अगर हम देखें तो -π/2 -π -3 π/2 -2 π means -π/2 to +π/2, this part of the graph. ये जो हमारे पास एक रेंज आता है, एक पीरियड आता है, इसको अगर हम कंसिडर करें और यहां पे हम एंगल को डिफाइन करें जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी कहेंगे, -π/2 से +π/2 तक प्रिंसिपल वैल्यू and y belongs to -1 to +1 in closed interval, तब ये फंक्शन 1 फंक्शन हो जाएगा, इसका इनवर्स पॉसिबल होगा. इस वजह से हम जब इसके एंगल की रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं -π/2 से +π/2 लेते हैं, जबकि y को -1 से +1 तक क्लोज इंटरवल में इसके रेंज को लेते हैं. इसी प्रकार से अगर हम कोसाइन के ग्राफ को प्लॉट करें, देखिए मैं प्लॉट करता हूं, आपका टाइम कंज्यूम कम हो इस वजह से. बोर्ड को रब करने के लिए पॉज किया था वीडियो को. नाउ सेकेंड, y is equal to cosec x और x is equal to cosec इनवर्स y. इसके ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें, दिस इज x, दिस इज y, 0 π/2 π 3 π/2 2 π, -π/2 -π -3 π/2 -2 π. This is +1, this is -1. Graphs comes out to be in this way. If we plot its inverse trigonometric functions graph, then y
this is x, pi by 2, pi, 3 pi by 2, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi. Now, if we plot the graph, then we get this graph we get. If we compare these two graph, तो यहां पे इसकी निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों आनी चाहिए. निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों के लिए अगर हम ग्राफ को देखें तो हमें ग्राफ को यहां से दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, that is from minus pi by 2 to plus pi by 2, that is x belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2 and y belongs to r minus 1 to plus 1. We have no other options, but at the same time we are seeing that it is not defined at angle 0, angle pi, minus pi. Therefore we have to exclude in this range the 0 angle. हम दूसरी इंटरवल भी ले सकते थे, जैसे यहां माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, प्लस पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, ये सभी कंसिडर किए जा सकते थे. ऐसे जो भी इंटरवल बनेंगे, दिस हियर टू हियर, हियर टू 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ये सभी इंटरवल के लिए चीज डिफाइंड है. लेकिन हम लीस्ट वैल्यू को लेके चलना चाहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू को डिफाइन करने में. इस वजह से दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इट फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2. नाउ आवर थर्ड फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और कॉस फंक्शन. y is equal to cos x और x is equal to cos इनवर्स y. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, देन x y minus 1 0 plus 1, this is pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi. This graph comes out at 0 it is 1, at pi by 2 0 and pi minus 1, 0 plus 1. This is the graph here for cosine function. So minus pi by 2 0, pi minus pi minus 1, 0 plus 1. This is the cosine graph. Simply this is many to one graph for cos inverse y.
y x +1 -1 π/2 pi 3π/2 2 pi 3π/2 pi π/2 -π/2 -pi -3π/2 -2 pi. At 0 it is 1, π/2 0, pi -1. Graphs come out to be this one, and here similarly this is not a function. अगर हम इसको फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें जो वैल्यू लेनी चाहिए जिसमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाए, भाई यहां से यहां तक पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, कंटिन्यूअस है यहाँ पे, तो उस केस के लिए हमें इस ग्राफ को यहां से यहां तक कंसीडर करना पड़ेगा। 0 से लेकर के पाई तक, पाई से लेकर 2 पाई भी हो सकता था, -पाई से लेकर 0 भी हो सकता था। लीस्ट वैल्यू किसी एक को हमें डिफाइन करना था, उसको लेके चलना था, हम इसको लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर 0 to पाई की हम बात करेंगे तो हम इस केस में प्रिंसिपल वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक डिफाइन कर रहे हैं। Therefore x belongs to 0 to pi and y from -1 to +1. Now the fourth graph is its inverse sec or sec inverse graph. 4 y is equal to sec x. Here x is equal to sec inverse y. For when we are trying this one, this is x 0 π/2 pi 3π/2 and 2 pi. This is -π/2 -pi -3π/2 -2 pi, and this is y. At 0 its value is 1, π/2 infinite, -π/2 to infinite. The graph is in this way. -1. Here the graph is this one. Again this is +1 -1. This one, and here if we draw, then graph comes out to be this one. Now about sec inverse y. This is y, this is x, this is 0, π/2 pi pi 3π/2 2 pi -π/2 -pi -3π/2 -2 pi. At π/2 it comes out to be infinity. Then we have to draw these lines, which is also called asymptotes line. This is the graph we plot. This is +1 -1.
So we have to take if we include this part at the same time this part, or here we say this part and this part, then this constitute the principal value. इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट डिवाइड है, यहां से यहां तक केवल पॉजिटिव पार्ट आएगा, इसलिए ये हमारी मजबूरी है कि हम एक इस पार्ट को लें, दूसरे इस पार्ट को लें. Therefore x belongs to 0 to pi, excluding pi by 2 here. pi by 2 पे डिफाइंड नहीं है. And y belongs to r minus -1 to +1 open interval. Now coming to fifth function, y is equal to 10x. इसके ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi, this is x, minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi, this is y. At 0 10x की वैल्यू 0 होती है, pi by 2 पे पॉजिटिव इंफिनिटी होती है. At the same time minus pi by 2 पे नेगेटिव इंफिनिटी होती है. So this graph comes out in this way. It is a repetitive, therefore, or periodic, therefore, we can repeat this graph time and again. Now, अगर हम यहां से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को देखने जाएं, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को डिफाइन करना है. बीच में अगर पॉसिबल है तो कोई भी ऐसी वैल्यू ना आए जो कि इसकी वैल्यू को नॉट डिफाइंड या इनडिटरमिनेट बनाती है, जैसे वैल्यू एट द पाई बाई 2. तो यहाँ पे मेरे पास x जो आ जाता है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 एंड y बिलोंग्स टू r. इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं इसके इनवर्स के ग्राफ से भी. मीन्स x इक्वल टू 10 इनवर्स y. इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें, दिस इज y माइनस y, दिस इज x, 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 and 2 pi minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi. हमें पता है पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट. तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमारे पास आना चाहिए. और हमने जो चूज किया प्रिंसिपल वैल्यू में इसी पार्ट को चूज किया है, फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2. हम यहाँ से माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 2, ऐसे कोई भी इंटरवल चूज कर सकते थे, क्योंकि हम लीस्ट वैल्यू को लेके रखना चाहते हैं. इस वजह से हमने माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक 10 के केस में चूज किया है. नाउ कमिंग टू लास्ट फंक्शन, दैट इज कॉट फंक्शन. 6 y इक्वल टू कॉट x. पहले हम इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं. This is y, x, 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi. ये देखें तो ये 0 पे इंफिनिटी आएगा ना, पाई पे इंफिनिटी आएगा. पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी,
तो ये कुछ ग्राफ इस प्रकार से जाना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे भी हम कुछ इस प्रकार से बातें ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। यहां पे देखिए, अगर इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू को डिफाइन करना हो, हम -π/2 से +π/2 की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में एक नॉन डिफाइंड पार्ट आ जा रहा है। और उससे अगर हम जाएं भी -π/2 से लेके +π/2 तक, तो दोनों ही केस में हमें नॉट डिफाइंड पार्ट को लेके चलना पड़ेगा। हम इसको दूर हटते हैं, इस चीज को जनरली एक्सेप्ट नहीं करते। अगर ऐसा कुछ फीजिबल है कि वहां पर कोई भी इनडिटरमिनेट पार्ट ना पड़े, जैसा कि 0 पे, पाई पे आ रहा है, ठीक, अगर कोई रास्ता नहीं है देन वी हैव टू चूज। लेकिन अगर हमारे पास रास्ता है तो हम इससे पहले हम इसके इनवर्स फंक्शंस की ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं। x = cot इनवर्स y, this is x, 0, π/2, pi, 3π/2, -π/2, -π, -3π/2। नाउ इसको अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, पाई पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा। तो यहां पे भी अगर हम लेके चलें 0 से लेके पाई तक, यानी ये पूरे को कंसिडर करें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हम -π/2 से लेके +π/2 तक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जा रहा है 0 डिग्री पे। हम जनरली इससे बचते हैं अगर इन दोनों में कुछ ऐसा कॉमन आ जाता है। सपोज करें इसमें आता और इसमें नहीं आता, तो हमारे पास केस डिफरेंट होता। लेकिन यहाँ पर 0 से पाई के लिए दोनों पे ही हमारे लिए डिफाइंड हैं। देयरफॉर यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन करेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई and y belongs to simply r. This is range. जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ की बात है, ये हमें आना चाहिए। और साथ में जो प्रिंसिपल वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चूज करते हैं, वहां पे 0 से पाई तक क्यों चूज किया हुआ है कॉट में। बाकी समय आप देखें, अगर साइन में -π/2 से +π/2, तो कोसाइन कॉसेक में भी यही था। अगर कॉस में 0 से पाई था तो सेक में भी 0 से पाई था। टेन में -π/2 से +π/2 होता है, लेकिन कॉट में 0 से पाई होता है। रीजन इज दैट वन। डोमेन एंड रेंज। अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिलेशन एंड फंक्शंस की टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहें, इन दैट केस वी कैन राइट एज please remember these things, and these things will be utilized in solving inverse trigonometric functions, which seems sometimes very difficult because the conventional way of simple trigonometry is not successful here because of its domain and range. The question I will take in my next video lecture. Till then, good day.